ہم کس طریقے کے ساتھ اس دنیا میں جب مشکلات اور مصیبتیں بڑھتی جائیں یا بڑھتی ہیں، ہم کس طریقے کے ساتھ اس میں قائم رہ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ابھار رہا ہوں کہ جب مشکلات یا تکلیفیں یا مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، کئی دفعہ یہ ٹھیس لگنے کا سبب بنتی ہیں، کئی دفعہ یہ زخمی کر دیتی یا ہمیں روک دیتی ہیں اور ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہیں اور ہم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ان میسیجز کے ذریعے سے آپ کو ابھار رہا ہوں کہ ان کو آپ بجائے کہ ٹھیس لگنے والے پتھر سمجھیں، بلکہ اسے سٹیپنگ سٹونز بنائیں، یعنی قدم رکھنے والے کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ آمین۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں، ڈیوائن ریسورسز آف لائف's ڈیفیکلٹیز۔ آپ یہ میسج جو ہے آپ کی زندگی کے اندر گہرا کام کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ کہ جو الہی ذرائع ہیں زندگی کی مشکلات کے لیے، آج میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، کس طور پر جو ہے خدا اپنے ریسورسز کے ذریعے سے ہماری جو زندگی کی مشکلات ہے اس میں سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ ہمیں ڈیوائن ریسورسز کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ ورلڈلی ریسورسز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس کے اوپر ہماری نظر ہے، جس کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں اور کئی دفعہ مایوس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نا امید ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ڈیوائن ریسورسز کے اوپر اپنا دھیان رکھیں گے، ڈیوائن ریسورسز کے اوپر یہ اپنی نظر جمائیں گے، تو یقین جانیے کہ آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں سے نکل جائیں گے۔ آمین۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مارٹن لوتھر نے 31 اکتوبر 1517 میں 1517 میں جب اس نے وٹنبرگ جرمنی کے چرچ پر اپنے 95 تھیسس جو ہے وہ گاڑ دیے اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے ان کا جواب چاہیے۔ اسی سے پروٹسٹنٹ جو ہے وہ یہ پروٹسٹنٹ تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ 31 اکتوبر 1517 کی بات ہے۔ اور نتیجے میں تاریخ دان کہتے ہیں کہ ریفارمیشن جو ہے وہ وقوع میں آئی ہے۔ اور اس کوشش نے کیا کیا ہے، جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نجات کی جو سچائی ہے اس کو پیدا کیا کہ نجات ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ریفارمیشن کے آنے سے نہ صرف جو ہے بائبل کی الہی جو الہیات ہے نہ صرف وہ چرچ میں واپس آئی، بلکہ غور سے سنیے، اس کے ذریعے سے جو ہے کیا ہوا کہ چرچز میں جو ہے گانا سٹارٹ ہوا، سنگنگ جو ہے وہ خداوند کی حمد و ثنا چرچز میں ہونے لگی۔ تو گویا یہ دیکھیے کہ اس ایکٹ کے وسیلہ سے نہ صرف بائبلی جو تعلیم ہے وہ واپس آئی، ساتھ ساتھ گیت اور پرستش، ستائش، حمد جو ہے وہ چرچز میں ہونے لگی۔ مارٹن لوتھر خود ایک اچھا موسیقار تھا اور اس نے اپنی موسیقی سے، میوزک کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دی اور اپنے ایمان کا اس نے اظہار کیا۔ اور
اس کا ایک خاص گیت A mighty fortress is our God. ٹھیک ہے، ہمارا خدا جو ہے ایک مضبوط قلعہ ہے. اس نے جو ہے یہ اس کے گیتوں میں سے ایک خاص گیت جو ہے وہ بڑا جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ تھا، اور وہ جو ہے وہ اس نے کام کیا. اور صدیوں سے جو یہ بات جو ہے مارٹن لوتھر نے جو ہے وہ جرمنی میں اور یورپ کے اندر جو ہے یہ گایا، وہ آج بھی جو ہے خدا کے لوگوں کی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو تمام مشکلات میں سے نکالنے میں کارگر ہے. اور یہ زبور جو گایا گیا ہے، یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ زبور 46 ہے. آمین. کہ خداون ہمارا کیا ہے، وہ قلعہ ہے. ہاں، رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. A mighty fortress is our God. So اس گیت کے ذریعے سے، اس حمد کے ذریعے سے جو ہے اس نے خداون کے نام کو عزت اور جلال دیا. تو یہ اس کے ساتھ یہ گیت جوڑا جاتا ہے کہ یہ مارٹن لوتھر نے گایا ہے. چنانچہ جب آپ زبور 46 گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ خدا کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کو ابھارتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، بھروسہ رکھنے والوں کے لیے جو ہے خدا کیا ہے، A mighty fortress. آمین. وہ مضبوط قلعہ ہے. اور آج جو ہے میں زبور 46 میں سے جو ہے 3 جو ڈیوائن ریسورسز ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں قائم رہیں اور اس میں سے نکل سکیں. آمین. پریز دی لارڈ. یہ حوالہ جو مارٹن لوتھر کا دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس نے جو ہے اپنے اس سارے پروسیس میں جو اپنے 95 تھیسس جو ہے وہ گاڑ دیے، اس کے بعد جو اس نے جس کے اوپر وہ قائم رہا، جس کو اس نے گایا، جس زبور نے جو ہے اس کو اس سارے حالات کے اندر قائم رکھا، جس نے جو ہے ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا ہے، جس سے ریفارمیشن جو ہے آئی ہے، جس میں گیت، نغمے، راگنیاں یا چرچز میں آنے چاہیے، جس سے جو ببلیکل تھیولوجی جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے. تو اس میں اس نے کہا A mighty fortress is our God. Praise the Lord. آج 3 جو ہے وہ ڈیوائن ریسورسز کو ہم اپنی زندگی کے اندر لیں گے، تاکہ ہم جب دنیا کی اور اس اپنی زندگی کی مشکلات میں سے نکل سکیں اور اس میں سے بچ سکیں. میرے ساتھ نکالیے زبور 46 اور اس کی فرسٹ ورس. اور آپ کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. زبور 46 اس کا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا زبور خداوند کے حضور میں پڑھا جائے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت زبور نمبر 46 اس کی پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار. اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں. ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس سے مسکن کو فرحت ہوتی ہے. خدا اس میں ہے اور اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا. قومیں جنجلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی. وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں اور زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے. وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے. وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے. خاموش ہو جاؤ، جان لو کہ میں خداوند ہوں. میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے،
یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنجام پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. اس میں 3 باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو زبور نویس نے اس زبور میں کہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آمین. ہمیں ڈرنے کی کیا ہے؟ وہ ضرورت نہیں ہے. ڈر اور خوف یہ پھندا ہے جو زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا ایک عجیب سے خوف کا شکار ہے. گھروں کے اندر، معاشروں کے اندر جو ہے خوف پایا جاتا ہے. قوموں، ملکوں، امتوں کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے، اور انجانا سا خوف ہے، اور سمجھ سے لوگوں کے باہر ہے کہ کیا، کب تک، کہاں تک جو ہے ہم قائم رہ سکتے ہیں اور کتنی دیر تک قائم رہ سکتے ہیں. یہ خوف چھا رہا ہے. نہ صرف وہ اپنی بابت سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی بابت سوچتے ہیں، اپنے گھرانوں کی بابت وہ سوچتے ہیں، اپنے جابز، اپنی بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی فیملیز کیا بنے گا. لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں. یہ شاید یہ جگہ میرے لیے اچھی ہے، یہ شاید یہ جگہ جو ہے یہ مناسب ہے، میں یہاں پر محفوظ ہوں، میں یہاں پر سیف ہوں. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ یہ خوف جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن داؤد کہتا ہے، یہ زبور کہتا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس پناہ گاہ ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. A very present help in trouble. آمین. کہ خدا جو ہے مصیبت میں مسترد مددگار ہے، وہ ہماری پناہ ہے. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. تو دیکھیے کہ ٹربل کے سبب سے، مشکلات کے سبب سے، مصیبت کے سبب سے جو ہے وہ اظہار رسانیوں کے سبب سے، دکھوں کے سبب سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. لیکن جو ہے زبور نویس کیا کہتا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں ہے. آمین. چنانچہ جو پہلا جو ہے ڈیوائن ریسورس یہ ہے کہ خدا ہماری پناہ ہے. پریز دی لارڈ. کوئی بات نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. کیا ہوا ہے، کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے. لیکن ان سارے حالات میں ایک بات درست ہے، ایک بات ڈیفائن ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا ہماری پناہ ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ کہتا ہے کہ زمین ہل جائے، ٹھیک ہے، زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے کیا ہو جائیں؟ ہل جائیں. دیکھیے کہ ایسا بڑا زلزلہ، ایسا بڑا جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ہل جل ہو جائے، جسے زمین الٹ جائے. اور زمین کیسے الٹتی ہے؟ آپ نے ترکی کے اندر، آپ نے جو ہے وہ شام کے اندر دیکھا ہے. تو اگر آپ دیکھیے کہ ہم ان کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، اگر آج جو ہے ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو جائے، آج اس ملک کے ساتھ ہو جائے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو ملک ابھی تو جو ہے اب بھی ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری مشکلات ہیں، اس میں بہت سارے بحران ہیں، اس میں بہت ساری تاریکی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی چیز سسٹین نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو ہے روز بروز جو ہے وہ تیل کی قیمتیں، روز بروز جو ہے اشیاء کی چیزیں جو ہے وہ کیا ہو رہی ہیں، اشیاء روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کی پرائسز. تو ایک خوف زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر جو ہے اوپر سے زلزلہ آ جائے، اس سے زمین ہل جائے، ادھر سے سونامی آ جائے، اس سے جو ہے وہ پہاڑ جو ہے لکھا ہے کہ وہ الٹ جائے اور وہ سمندر کی تہہ میں ڈال دیا جائے اور بڑا جو ہے وہ زلزلہ آ جائے، تو پھر کیا کرے؟ ہاں، خدا ہماری پناہ ہے. پریز دی لارڈ.
اور ایسی ہل ہو جائے، ایسا جو ہے وہ حالات ایک دم سے یکسر بدل جائیں، تو اس حالات میں ہم کیا کہنے والے ہوں اور ہم کیا کرنے والے ہوں اور ہم کیا سمجھنے والے ہوں، کس کے پاس دوڑ کر جائیں گے، کون سی چیز ہمیں جو ہے وہ بچا سکتی ہے، کون سی چیز ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے؟ کیا دنیا، کیا بھائی یا کیا بہنیں، کیا عزیز، کیا رشتہ دار، جبکہ وہ بھی ان سارے حالات سے متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب جو ہے ہر طرف جو ہے وہ مشکلات سی نظر آئے، ہر طرف جو ہے طوفان، ہر طرف جو ہے زلزلہ، ہر طرف جو ہے وہ سیلاب، ہر طرف جو ہے وہ پریشانی ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یاد رکھیے کہ معاشرتی جو تبدیلیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ حکومتوں کی جو کنفیوژنز پائی جاتی ہے، جو حکومتوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے، یہ کنفیوژن جو ہے وہ خدا کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، خدا کو یہ تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے یہ سمجھیے کہ وہ چٹان ہے، ایسی چٹان جو زلزلے سے نہیں ہلتی ہے، ایسی چٹان ہے جو اسے کوئی طاقت، کوئی قوت جو ہے اسے کیا کر سکتی ہے؟ ہلا نہیں سکتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بلکہ داؤد یہ کہتا ہے وہ نہ صرف ہماری پناہ ہے بلکہ ہمارا کیا ہے؟ وہ زور بھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بائبل مقدس میں جو ہے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جب جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہمیں بھاگنا پڑے، ہمیں دوڑنا پڑے، تو ہم کس طرف جو ہے وہ ٹکرے ماریں، ہم کس طرف جب دوڑیں، کس طرف جائیں، اور معلوم نہیں پڑتا کہ ہم کہاں پر جائیں۔ لیکن خدا نے اسرائیل کے اندر جو ہے پناہ کے شہر رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسی مشکل میں آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اور اس کے اوپر جو ہے خون ہو جائے، اور خونی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے قتل کرنے یا اسے مارنے، پھانسی دینے یا اسے سزائے موت کے سوا اسے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ جب ایسی صورتحال ہو جائے جس میں جو ہے جان کے لالے پڑ جائیں، جس میں جو ہے موت نظر آتی ہو، تو پھر کہاں پر چلے جائیں؟ جو ہے پناہ کے شہروں کی طرف دوڑ دیا جائے۔ آمین۔ اور یاد رکھیے کہ جو پناہ کے شہروں کی بابت بائبل مقدس میں تعلیم پائی جاتی ہے، اور جو اسرائیل کے اندر شہر تعمیر کیے گئے تھے، بنائے گئے تھے، مخصوص کیے گئے تھے، اور ان کے بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ان پناہ کے شہروں میں جانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ ہر ایک جگہ جس طرف جو ہے جن کا رخ جو ہے وہ پناہ کے شہروں کی طرف ہوتا تھا، وہ جگہ جو ہے کشادہ ہوتی تھی، وہ تنگ نہیں ہوتی تھی، وہ جگہ سموتھ ہوتی تھی، وہاں پر کوئی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ ناہموار نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی ٹھوکر نہیں ہوتی تھی اور اس میں کوئی پتھر نہیں ہوتا تھا، وہ سموتھ ہوتی تھی، تاکہ جو ہے کوئی شخص دوڑتے اگر وہ پناہ کے شہروں میں جاتا ہے تو اسے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اگر راستوں میں یا ندی نالے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر کیا کیا جائے؟ ان جو ہے ندی نالوں کے اوپر جب برج بنائے جائیں تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ رکاوٹ نہ ہو ان شہروں میں جانے کے لیے۔ لہٰذا جو ہے ایسی صورتحال میں وہاں پر کیا کیے جاتے تھے؟ جو ہے وہ برج بنائے جاتے تھے تاکہ جب کوئی شخص جو ہے پناہ کے شہر میں جانے کے لیے کیا کر سکے؟ جو ہے وہ آسانی اسے حاصل ہو اور وہ برج کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے وہ چلا جائے اور اسے جو ہے ندی نہ روک سکیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ وہاں پر ایسا نظر آتا ہے کہ رکاوٹ نظر آتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے تاکہ جو پناہ کے شہر کے لیے دوڑ رہا ہے اس کو کسی جو ہے رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ خدا بھی ہماری پناہ ہے۔
प्रेज द लॉर्ड। खुदा भी क्या है बोलिए, हमारी पनाह है। उसने हर एक रुकावट को दूर कर दिया, हर एक रुकावट को क्या कर दिया, खुदावंद यीशु मसीह में उसने क्या कर दिया है, वो दूर कर दिया। और सबसे बड़ी रुकावट क्या थी, खुदा के सामने जाने में एक बड़ा पर्दा लगा हुआ था, एक बड़ी दीवार जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान में थी कि कोई शख्स खुदा की पनाह में नहीं जा सकता है। खुदा ने जो है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से वो भी रुकावट दूर कर दी है। हालेलुया। उस पर्दे को कहां से किया, ऊपर से नीचे लेकर, नीचे से क्या कर दिया, उसने फाड़ दिया। और जब ऊपर से नीचे जो है वो पर्दा फाड़ दिया गया तो फिर जो है पौलुस रसूल जो है इब्रानियों के खत में लिखता है, आओ उस फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाएं, प्रेज द लॉर्ड, दौड़ कर जाएं। और एक जगह पर आप जो है इब्रानियों के खत के अंदर पढ़ेंगे कि जो है जो पनाह लेने के लिए दौड़े जाती हैं उन वादे के, इससे हमारी दिल जमी हो जाए, इससे हमारी दिल जमी हो कि खुदा ला तब्दील है, बेतब्दील है। और जो पनाह लेने के लिए उसके पास दौड़े जाते हैं, पनाह लेने के लिए जो उसके पास दौड़े हुए जाते हैं, उनको उनकी दिल जमाई हो जाए कि खुदा ने जो वादा किया है वो बेतब्दील है, उसने कसम के साथ वादा भी किया हुआ है। अजीज बहनों भाइयों, खुदा हमारी पनाह है और जो उसको उसके पास पनाह लेने के लिए दौड़ते हैं उनके दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, जरा सा भी, जरी से भी रुकावट नहीं है, बल्कि उसने क्या किया है, वो साफ चीजों को सम्मुत कर दिया है, बल्कि उसने रूहुल कुदस दे दिया है जो हमारी कमजोरी में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है, ताकि जो है जो शख्स उसको पनाह उसके हुजूर में पनाह लेने के लिए जा रहा है वो उसकी क्या करता है, मदद करता है। भाग भाग, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। चल जो है खुदा के हुजूर में पनाह लेने के लिए अगर तू जा रहा है तो मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे जो है किस चीज का खौफ है, क्या जल्जले का खौफ है, क्या तुखयानी का खौफ है, क्या समुद्र के शोर का खौफ है, कौन सी चीज का खौफ हमें जो है वो डुबो सकता है, हमें ले सकता है? क्या महंगाई का खौफ है, क्या प्राइसेस अप होने का खौफ है, क्या आपको अपने बिजनेस का खौफ है, क्या आपको अपनी जॉब्स का खौफ है, क्या आपको फाइनेंशियल क्राइसिस या आपको घेरे हुए इस बात का खौफ है? याद रखिए कि खुदा, बोलिए, हमारी पनाह है। ये डिवाइन रिसोर्स जो खुदा ने हमें ये दिया हुआ है, अगर हम जो आदमियों के रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, अगर आदमियों के ऊपर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, याद रखिए वो आपको मायूस कर सकते हैं, वो आपको जो है डिसअपॉइंट कर सकते हैं, वो आपको नाकाम कर सकते हैं, लेकिन खुदा नाकाम नहीं होने देगा हमें, और हमें मायूस नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो है क्यों खौफ ज़दा हों? क्या हम जो है ऐसे खुदा के ऊपर ईमान यकीन रखते हैं जो हमें जो है वो नाकाम होने देगा, जो हमें जो है वो फेल होने देगा, जो हमें डिसअपॉइंट कर देगा, हमें मायूस और नाउमीद कर देगा? बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। हालेलुया। आप जो है वो मार्टिन लूथर के साथ ये गा सकते हैं, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है कि जो है इस्राएल में कितने पनाह के शहर थे? बोलिए, बोलिए, कितने शहर थे? 6 शहर थे। ठीक है, कितने शहर थे? 6 शहर थे। बोलिए, कादिस, आमीन, फिर सिकम, हब्रून, बजर, रामा और फिर जोलान। ये 6 शहर थे पनाह के। और इनके अंदर खुदावन ने एक खास तालीम छुपा के रखी है। और अगर इन चीज़ों का रेवोल्यूशन जो है किसी शख्स को हो जाता है, वो खुदा को जो है हकीकी मायनों में खुदा को अपना कला, अपनी पनाह समझ सकता है। और कई दफ़ा ये कहते हैं कि वो 6 शहर थे, यीशु मसीह 7वां। नहीं, मैं इसके ज़रिए से आपको उभारना चाहता हूँ कि आप समझें कि ये शहर जो है हमें ये तालीम देंगे कि वाकई ही खुदा हमारी पनाह है। आमीन। जब आप कादिश कहते हैं तो इससे वर्ड कदूस निकला है। कादिश जो है कदूश, ठीक है, ये इब्रानी में क्या है? वो कदूस। आमीन। कादिश से क्या है? ये कदूस जो है होली। आमीन।
क्या है इसका मतलब है? कादस का क्या मतलब है? होली. प्रेज द लॉर्ड. आवर रेफ्यूजी इज द होली जीसस, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है. लिहाजा हमारी जो रेफ्यूजी है, जो हमारी पनाहगाह है, वो पाक पनाह है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. चुनाचे जब कोई शख्स जो है कादस का रुख करता है, तो दरअसल जो है वो पाक पनाह का तालिब हुआ है. और अगर कोई शख्स जो है अपनी नापाकी के अंदर है, अगर गुनाह की हालत के अंदर है, अगर जो है वो गुनाह आलूदा हो चुका है, अगर वो कादिश का जो है वो तालिब हुआ है, तो याद रखिए कि होली जीसस उसे होली कर देगा. प्रेज द लॉर्ड. और याद रखिए कि जो है आप यीशु मसीह को पढ़िए, यीशु मसीह को देखिए. वो जो है लोग जो है कई दफा जो इस्राएल की जो तालीम पाई जाती है, जो लॉ की जो तालीम पाई जाती है, कि कोई कोड़ी, कोई जो है जिसको खून का मर्ज है, अगर वो किसी को छूता है तो वो नापाक हो जाता है. अगर कोई जो है उसके साथ टच होता है तो वो नापाक हो जाता है. लेकिन आप बाइबल इस बात की जो है गवाही देगी, और अंजील इस बात की गवाही देते हैं कि जिसने यीशु मसीह को छुआ है वो पाक हो गया है. प्रेज द लॉर्ड. उस पनाहगाह की तरफ कोई रुख करता है, उस जो है कादिस का रुख करता है, उस होली जीसस का रुख करता है, वो क्या होता है? वो पाक होता है. उसको एक जो है औरत को जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसने उसको टच किया, उसने अपने अंदर कुव्वत महसूस की, उसने अंदर अपना जोर महसूस किया, और उसने कहा खुदा मेरी पनाहगाह है. He is my कादिश. हालेलुया. ये मेरा कादिस है जिसने मुझे पाक कर दिया है. और उसने अपने अंदर जोर जो वो पाया. और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी के खौफ का शिकार है, वो ऐसी नापाकी का शिकार है, मैं किस तरह से जो है इसमें से निकल पाऊंगा? मैं अपने गुनाह से, अपनी बदी से, अपनी बीमारी से, अपने इस बड़े खौफ से, जो बीमारी का खौफ है, जो गुनाह का खौफ मुझे खाया जा रहा है, मैं इसमें से कैसे निकल सकता हूं? एक ही पनाहगाह है जो पनाह भी है और जोर भी है. हालेलुया. जब क्राइस्ट को जो है ये पाक होली जीसस के तौर पर जो है अपनी जिंदगी के लिए कोई रिसीव करता है, और उसके पास इस तरह से पनाह लेने के लिए जाता है, खुदा मैं नापाक हूं और मैं जो है अपने आप को पाक नहीं कर सकता, तो वो ये पनाह आपको पाक कर देगी. ये पनाह ना सिर्फ पाक करेगी, ऐसा जोर देगी कि वो गुनाह की पर गालिब आ सकेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. सिकम का मतलब होता है शोल्डर. आमीन. लिखा है कि हुकूमत सल्तनत उसके कांधे पर होगी. He is a king. Hallelujah. और अगर आप तमाम कौमों और उम्मतों और हुकूमतों से परेशान हैं, मत घबराइए. यीशु मसीह को अपना बादशाह मानिए, यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानिए, यीशु मसीह को सिकम मानिए, जो जिसके कंधे के ऊपर सल्तनत है, और उसको अब्दुल्लाबाद जो बादशाह है, यह है वो उसकी बादशाह जो है वो अब तक कायम रहेगी. दुनिया की सारी बादशाहतें खत्म हो जाएंगी. वो पत्थर जो बगैर हाथ लगाए काटा गया है, उस मूर्ति के ऊपर जो है उसके पैरों के ऊपर लगा, और वो मूर्ति की जब पाश होगी, सारी सल्तनतें, सारी हुकूमतें जो इस दुनिया की हैं, जो हैं, जो आने वाली हैं, वो सब की सब जो है वो यकमुश्त एक लम्हे में, एक सेकंड के अंदर, और जो देखते ही देखते खत्म हो जाएगी. लेकिन एक ही जो सल्तनत कायम होगी, जिसके कंधे के ऊपर सल्तनत कायम है, वो उन तमाम के ऊपर क्या होगा? वो किंग होगा. प्रेज द लॉर्ड. खुदा हमारी पनाह है. हमें कुछ खौफ नहीं है, चाहे जो है वो जमीन हिल जाए, जमीन उल्ट जाए. आमीन. अगर आज शाम जो है वो हम जो है ये जो है इस जल्जलों से जो है पूरा मुल्क घिर जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? हम डर कर जो है अपना बुरा हाल कर दे, और जो है डर से जो है खुदकशी कर ले या सुसाइड कर दे. ये इस मुल्क के अंदर जो है कुछ नहीं होगा. लेकिन याद रखिए जो है सल्तनत उसके कांधे पर है. हालेलुया. वो हमें जो है खौफ खाने की जरूरत नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. और फिर जब वो हमारा हबरून है, वो क्या है? हबरून. ये तीसरा शहर है. कौन सा है? वो हबरून है. क्या है? बोलिए. इसका मतलब फेलोशिप. ठीक है. रफाकत, शराकत. प्रेज द लॉर्ड. अगर आप अपनी जिंदगी के लिए तन्हाई महसूस करते हैं, आप जो है क्या करें? किधर जाएं? किधर मूव करें? ठीक है. फेलोशिप. प्रेज द लॉर्ड. और खुदावंद ने जो है मसीह यीशु में हमें जो रफाकत और शराकत के लिए बुलाया है.
आमीन। किस लिए बुलाया है बोलिए? तमाम बिलीवर्स को फेलोशिप के लिए बुलाया है। वो अपनी फेलोशिप देता है। और यह आदम और हवा इस बात को नहीं समझ पाए कि वो तो हबरून है, वो तो फेलोशिप देने के लिए जो है वो उनके पास आया, लेकिन उन्होंने नहीं जाना। खुदा की खुशनुदी बनी आदम के अंदर है कि वो उसकी फेलोशिप के अंदर रहे। अगर कोई शख्स जो है वो तनहा है, अगर कोई लोनलीनेस का शिकार है, अगर कोई शख्स जो है वो जो है अकेलेपन का शिकार है, अगर कोई शख्स जो है वो दुनिया से दुनिया से आरी हो चुका है, वो देखता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आता है और मैं जो है आप भी अपने आप को कोसता रहूंगा, अपने आप को मारता रहूंगा और मेरा क्या बनेगा? ब्रदर एंड सिस्टर्स, ही इज आवर हबरून। हालेलुया। वो हमारा हबरून है जो हमें फेलोशिप देता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं फेलोशिप देने के लिए तैयार हूं। दौड़ कर आ। आमीन। कैसे आप बोल? दौड़ कर आ, मैं तुझे फेलोशिप दूंगा। याद रखिए कि उसकी फेलोशिप के अंदर रहकर, उसकी रफाकत और शराकत के अंदर रहकर हम जो है वो तसल्ली और इत्मीनान पा सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा तसल्ली गाह एक ही जगह है। बोलिए वो कौन सी जगह है? हबरून। प्रेज द लॉर्ड, ही इज माय हबरून। आमीन। वो मेरा हबरून है। चनाचे हमें किस चीज का खौफ है ब्रदर और सिस्टर्स? हमें किन चीजों ने जो है खौफ ज़्यादा कर दिया हुआ है? हम समझते हैं कि हमारा खानदान या मैं अकेला रह गया हूं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई जो है मेरा ख्याल नहीं रखता है। यह ना रखे, एक तो है जो कहता है कि मैं हबरून हूं। प्रेज द लॉर्ड। ना रखे कोई, ना पूछे कोई, ना जाने कोई, ना ख्याल रखे कोई। आपको कोई शख्स जो है वो ठोकर मार देता है, अगर कोई शख्स जो है आपको जो है दूर कर देता है और आप देखते हैं कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है जो मेरे साथ जो है रह सके, जो मुझे जो है वो सपोर्ट कर सके। यही होता है, कोई मुझे सपोर्ट कर सके, जो मेरी जो मुझे जो है अपलिफ्ट कर सके, जो मुझे रेस कर सके। लेकिन आप देखते हैं कि कोई भी नहीं और हम कोसते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही बसर कर देंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही जो है वो गुजार देंगे और हम खत्म हो जाएंगे। ना, नहीं। ठीक है। द डिवाइन रिसोर्स जो है हमारे पास क्या है कि हमें कुछ खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा कादिश है, वो हमारा सिकम है, वो हमारा क्या है बोलिए? हबरून है। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो बसर है। जब आप ये यीशु की किताब 22वां बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, ये सारे जो है आपको शहर नजर आएंगे। वो हमारा बसर है। इसका मतलब है जो है वो हमारा फोर्ट्रेस है, वो हमारा कला है। प्रेज द लॉर्ड। द स्ट्रॉन्ग होल्ड। हालेलुया। जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं वो उनके लिए क्या? स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनके लिए मजबूत कला है। अगर कोई शख्स जो है ये खौफ ज़दा है कि मैं कहाँ पर भाग कर जाऊँ, और उसको जो है वो ज़लज़ले तंग कर रही हैं, उसको जो है समुंदर की तुखियानी, उसका शोर जो है उसके कानों को फाड़ डालेगा और वो अपने कान बंद किए हुए है और अपनी आंखों को जो है बंद किए हुए है। वो सहमा हुआ बैठा हुआ है और एक कोने के ऊपर बैठा हुआ है और एक जहां अपने घर के कोने के अंदर यार बैठा हुआ है। कई दफा क्या है कि करवट बदल कर जो दूसरी तरफ दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उससे पूछा जाए क्यों, क्या वजह है? मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूँ, मैं तकलीफ ज़दा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं बीमार हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, मेरा बिजनेस कोई नहीं है, मेरे पास रुपये पैसे की कमी है, मैं जो है अपनी ज़रूरियात को सही तौर पर पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता और मुझे जो है फ्यूचर जो डार्क नज़र आता है, मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट नज़र नहीं आता, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, हम इसमें पनप पाएंगे नहीं पनप पाएंगे, मेरे पास जो है कोई मदद नजर नहीं आती है। जो है बहनों और भाइयों, बसर, हालेलुया, वो क्या है? वो फोर्ट्रेस है। प्रेज द लॉर्ड। अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ही इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो हमारा मजबूत कला है। हालेलुया। वो मजबूत कला है। अगर कोई शख्स जो है परेशान है, इसलिए बाइबल मुक़द्दस में जो है ये कहा है कि जो है उसका नाम मोहकम बुर्ज है और साधक उसमें क्या करता है बोलिए? उसमें भाग जाता है। वो क्या है? वो उसका नाम मोहकम बुर्ज है। साधक क्या करता है बोलिए? वो भाग जाता है। और पनाह के इशारों के लिए क्या किया जाता है बोलिए? पनाह के इशारों में जो है एक ही बात जो है वो खास है। पनाह के इशारों के लिए कोई शख्स जब वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलता था,
ठीक है, वो ऐसा ऐसा नहीं चलता था, वो मैराथन रेस नहीं थी, वो तो यह तेज रेस थी, वो फास्ट रेस थी, उनको रनिंग करना पड़ती थी। जिस शख्स ने पनाह के शहरों में जाना होता था वो आराम से नहीं जाता था, वो कैसे जाता था बोलिए? दौड़ कर जाता था। हम अपने खौफ से निकलना चाहते हैं, हम अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं। जिंदगी की मुश्किलात में सिर्फ यही डिवाइन रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल है, और इसके लिए आपको सुस्ती नहीं करना पड़ेगी। अगर आपने सुस्ती की, याद रखिए, गौर से सुनिए, अगर कोई शख्स पनाह के शहरों में जाने में सुस्ती करता था, इससे पहले कि पनाह के शहर में किसी का कदम पड़े और उससे पहले किसी ने उसे पकड़ लिया तो वो मारा जाएगा, और कहा जाता है तो फिर उसका खून उसी के गर्दन के ऊपर होगा। फिर वो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई शख्स पनाह के शहरों से दौड़ने में सुस्त है, अगर कोई शख्स पनाह के शहरों में जाने में वो सुस्त रोई का वो शिकार है, और अगर लापरवाह भी मैं कहूँगा है कि नहीं मैं बच जाऊँगा, मैं यहीं पर रह कर वो बच जाऊँगा, मैं इसी सूरत हाल में कुछ ना कुछ कर लूँगा, या मैं इसी सूरत हाल में कोई ना कोई हल ढूंढ लूँगा, तो मैं याद रखिए कि दुनिया के सारे हल नाकाम हो जाएंगे। दुनिया के सारे सॉल्यूशन वो नाकाम हैं, वो नाकाम हैं, वो नाकाम हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वो कादिस की तरफ दौड़ेगा, वो सिकम की तरफ दौड़ेगा, वो हबरून की तरफ दौड़ेगा, वो बसर की तरफ दौड़ेगा, तो याद रखिए वो उसके कदम पड़ने ही से वो महफूज हो जाएगा। आमीन। जो ही उसका कदम पड़ेगा तो चनाचे फिर उसे क्या कर लिया जाएगा? उसे कवरिंग मिल जाएगी, उसे वो छिपा लिया जाएगा, उसे हाइड कर लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और कौन चाहता है कि वो इस खौफ से निकल जाए, और कौन चाहता है कि वो जिंदगी की मुश्किलात में से इस डिवाइन रिसोर्स को हासिल करना चाहता है, तो फिर आपको दौड़ना होगा। आमीन। क्या करना होगा बोलिए? दौड़ना होगा। तो अगर पड़े रहेंगे या सुस्त होकर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, फिर नहीं रहेंगे। इसलिए आप उससे पूछिए, या पौलुस रसूल से पूछिए, वो क्या कहता है, वो क्या करता है? मैं निशान की तरफ क्या करता हूं बोलिए? हैं? क्या करता है वो बोलिए? दौड़ता हुआ चला जाता हूं। उसे मालूम है कि अगर मैंने जरा सी भी सुस्ती की तो मैं निशान को मिस कर जाऊंगा, मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पर मुझे पहुंचना है। बहुत सारे ईमानदार वो सुस्ती का शिकार है, बहुत सारे ईमानदार लापरवाही का शिकार हैं, जिसके सबब से वो हत्या चढ़ जाते हैं इन चीजों के, और उनकी जान का नुकसान हो रहा है। मैं आपको आपकी जान का नुकसान होने से बचाना चाहता हूं। और इसी किस तरह से आप बच सकते हैं, किस तरह से आप महफूज हो सकते हैं? अगर आप इस फोर्ट्रेस में आ जाएं, आप इस फेलोशिप के अंदर आ जाएं, आप इस होली मैन के पास आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मारे जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर उसमें से निकलने नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर रामात रामात जलाद के अंदर रामा में कोई शख्स ये भी वो पनाह का शहर था, जिसका मतलब है हाई प्लेस। आमीन। ठीक है, एग्जॉल्टेड। प्रेज द लॉर्ड। और एक ही शख्स वो हाई प्लेस के ऊपर है, और वो कौन है बोलिए? खुदा ने उसे क्या किया है? अपने दाहिने हाथ में सरफराज किया है। हालेलुया। तो चनाचे वो तो हमारा रामा भी है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वो ऊपर हाई प्लेसेस के ऊपर वो महफूज होते हैं। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। आपको मालूम है कि अबलीस उसकी रूहानी फौजें कहाँ पर हैं? आसमानी मकामों पर हैं। क्या कहाँ पर है बोलिए? आसमानी मकामों पर हैं। ठीक है, ये तमाम जगह आसमानी मकामों के ऊपर किसका रूल चल रहा है, किसकी आप कौन सी वहाँ पर प्रिंसिपैलिटीज ये सारी तारीकी की प्रिंसिपैलिटी वहाँ पर काम करती हैं। लेकिन याद रखिए, ठीक है, कि यीशु मसीह वो आलमे बाला पर खुदा की दाईं तरफ बैठा हुआ है। आमीन। वो उससे भी आगे है।
आमीन। और वो जो है अगर आसमानी मकामों के ऊपर जो है इब्लीस की रूहानी फौजें, जो है शरारत की रूहानी फौजें आसमानी मकामों के ऊपर यहाँ पर है, लेकिन याद रखिए अगर कोई शख्स जो है उसको जो है यीशु मसीह को, खुदावन को अपना रामा मानता है, अपना रमात मानता है, उसको जो है खुदावन मानता है, तो वो उससे भी हाई होगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह में हमें आसमानी मकामों पर क्या किया गया है, वो बिठाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई शख्स यीशु मसीह को जो है रामा मानता है, यानी वो जो है पनाह का शहर है मेरे लिए, तो वो शख्स कभी भी जो है इन इब्लीस की रूहानी फौजों का शिकार नहीं होगा। हम उसके निशाने के अंदर हैं, हम उसके निशाने पर हैं, ठीक है, हम उसके निशाने पर हैं। लेकिन अगर आपने जो है यीशु मसीह को अपना रामा मान लिया है, अगर उसको जो है इस पनाह का शहर मान लिया है, आप उससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। आमीन। वो जो है वो आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, वो उस हाई प्लेस के ऊपर है। रामा का क्या मतलब है? हाई, एग्जॉल्टेड। आमीन। हाई यहाँ जो है एग्जॉल्टेड, चनाचे एक ही एग्जॉल्टेड है और वो यीशु मसीह है, ठीक है, जिसने जो है वो जिसने मौत और कब्र की पर फतह पाई और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और फिर जोलान, ये छठा शहर है जिसका मतलब है जॉय। आमीन। क्या है वो? जॉय। हम उदासी का शिकार हैं, हमारे चेहरे लटके हुए हैं, हमारे चेहरे जो है इंतहाई अफसुर्दगी का शिकार है और हम जो है ढीले ढीले फिरते हैं। कोई पूछता है ये सूरत हाल कैसे हो गई है? हम उदास हैं, हम उदास हैं, हम जो हालात के मारे हुए हैं। जोलान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या है हमारा? जोलान। अगर कहेंगे तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। अगर हम उदास हैं तो उदास रहेंगे, अगर अफसुर्दा हैं तो अफसुर्दा रहेंगे, अगर परेशान हैं तो परेशानी में पड़े रहेंगे, अगर हम तकलीफ में हैं तो कोई भी हमारी तकलीफ का कोई हल नहीं है। अगर हम दुनिया की और जो है ज़िंदगी की मुश्किलात का जो है पूरे तौर पर शिकार है तो आप इसी का शिकार रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि आप कभी भी नहीं निकलेंगे, लेकिन जो ही कहेंगे ही इज़ आवर जोलान, ही इज़ आवर गुलाम, तो फिर क्या होगा? वो शख्स जॉय के अंदर आ जाएगा, वो शख्स जो है वो स्ट्रेंथन के अंदर आ जाएगा, वो शख्स जो है वो ग्लोरी के अंदर आ जाएगा, और वो शख्स जो है वो खुशी के अंदर, शादमानी के अंदर आ जाएगा, और उसकी शादमानी का कोई शख्स जो वो जी नहीं सकेगा। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप जो है वो कह सकते हैं, जो है मार्टिन लूथर ने कहा a mighty fortress is our God. आमेन। वो हमारा कला है, वो हमारी पनाहगाह है, ही इज आवर रेफ्यूजी, वो हमारी पनाह है, और ना सिर्फ वो हमारी पनाह है, वो हमारा जोर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नोट कीजिए, ना सिर्फ वो हमारी पनाह है बल्कि क्या है, बल्कि हमारा जोर है। याद रखिए कि जब हम छोड़ कर जाते हैं, हम छुपने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो क्या करता है, हम मदद के लिए जाते हैं। हम जब खुदा के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? दौड़कर मदद के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है? जब हम मदद के लिए जाते हैं उसके पास, वो हमें छुपा लेता है। आमीन। वो हमें क्या करता है? छुपा लेता है। तो और फिर वो हमारी मदद होती है। फिर गौर से सुनिए, जब वो हमें छुपा लेता है तो इसलिए नहीं छुपा के रखता, अब अगली बात सुननी है, वो इसलिए हमें नहीं छुपा के रखता है कि यह हमें लाड प्यार के साथ रखे। वो हमें इसलिए नहीं छुपा के रखता कि हम क्या करें, वो हमारे साथ लाड प्यार करे कि मैंने तुम्हें छुपा लिया है। वो इसलिए हमें जो है वो छुपा के रखता है कि हमें तैयार करे, ताकि फिर से हमें जो है इस यहाँ से भेज सके और बता सके कि मेरी मर्जी इस ज़मीन के ऊपर तुमने पूरी करनी है। आमेन।
और वो हमें जब छुपा कर रखता है, ऐसा स्ट्रेंथन करता है, ऐसा जोरावर करता है, ताकि जो है वो हम उसके लिए इस्तेमाल हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कादिश को जो है अपनी पनाहगाह बनाए हुए हैं, अगर आपने जो है उसे हबरून को जो है बना लिया है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है सिकम को जो है सिकम और हबरून, बसर, रमात और जोलान, इन तमाम शहरों को सामने रखते हुए मान लिया है कि खुदावन यसु तू मेरा कादिश है, तू मेरा सिकम है, तू मेरा हबरून है, तू मेरा बसर है, तू मेरा रमात है, तू मेरा जोलान है। आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या होगा? आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी, शादमानी और जो है पनाह और जो है मुहाफ़ज़त वक़ूअ में आएगी। और जब आप उसकी पनाह में आएंगे, वो ऐसा आपको तैयार करेगा कि फिर जब आप जो है इस दुनिया के अंदर खड़े होंगे तो फिर छाती तान कर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर खौफ के साथ नहीं, बल्कि दाऊद के साथ मिलकर क्या कहेंगे? काउस का पानी शोर मचाए और मौजूदन हो और पहाड़ उसकी तुखियानी से हिल जाएं। हालेलुया। हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाए, हमें कुछ खौफ नहीं है। खौफ का हल जो है एक ही है, खुदा हमारी पनाह है। आमीन। अगर जो है खुदा हमारी पनाह नहीं है तो याद रखिए हम जो है दुनिया के अंदर जो है हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अफसरदा रहेंगे, हम जो है गैर महफूज रहेंगे। लेकिन अगर खुदा को आपने अपनी पनाहगाह मान लिया है तो फिर याद रखिए आपको फेलोशिप भी मिलेगी, आपको जॉय भी मिलेगी, आप फोर्ट्रेस में भी रहेंगे। आमीन। आप ऐसी ऊंची जगहों के ऊपर होंगे। यह शैतान जो है चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दुनिया की मुश्किलात आपको जितना मर्जी जो है वो घेर ले, आप जो है उनकी रसाई आप तक नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप जो है दुनिया की गंदी तरीन जगहों के ऊपर क्यों ना रह रहे होंगे, इंतहाई नापाक जगहों के ऊपर भी आप क्यों ना होंगे, अगर आपने यीशु मसीह को जो है अपनी पनाहगाह मान लिया है, अपना कादिश मान लिया है, वहां पर भी आप जो है पाकीज़गी को, उसके जलाल को के जो है वो जाहिर करने वाले बनेंगे। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात जो डिवाइन रिसोर्स है, दूसरी बात जो हमारे पास खुदा ने डिवाइन रिसोर्स दिया है इस ज़बूर में कि जो है उसे कभी जुम्बश ना होगी। वी नीड नॉट फेंट। हमें जो है फेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। हमें फेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम जुम्बश खा के गिर नहीं पड़ेंगे। हम जो है वो हिम्मत हार कर जो है वो मान नहीं पड़ जाएंगे। और हम कई दफ़ा हम मान पड़ जाते हैं और कई दफ़ा हम बेहोश हो जाते हैं, कई दफ़ा जो है हम गिर जाते हैं, कई दफ़ा हमें जुम्बश आती है, ऐसी जुम्बश आती है और हम गिर जाती हैं। लेकिन ये ज़बूर बार बार आपको उभारेगा कि ना खौफ खाना है और ना जुम्बश खानी है, ना फेंट होना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास दरिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में फरमाती है कि ऐसा दरिया जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को राहत फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। आमीन। वो कभी फेंट ना होगा। और फेंट वही होते हैं जो प्यासे रह जाते हैं, फेंट वही होते हैं जो है वो मारे मारे फिरते हैं, फेंट वही होते हैं जिनको जुम्बश हो जाती है, वो गिर जाते हैं और जो है वो फेंट हो जाते हैं। उनको कहा जाता है इनको जब पानी पिलाओ, एक बार छींटे मारो, हमारे पास तो पूरा का पूरा दरिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? बोलिए। दरिया है। आपको मालूम है यरूशलेम जो है ये इसके बाबर क्या कहा गया है? ये पहाड़ों से गिरा हुआ शहर है। यरूशलेम क्या है? ये पहाड़ों से गिरा हुआ शहर है। लेकिन ये दरिया के ऊपर कायम बनाया नहीं गया है। आप जो है मिस्र के शहरों को देख सकते हैं, वो दरिया नील के ऊपर बनाए गए हैं। आप बाबल के शहरों को देख सकते हैं, वो दरिया अफरात के ऊपर बनाए गए हैं। आप रोम के शहरों को देख सकते हैं, वो जो है दरिया के ऊपर बनाए गए हैं। लेकिन यरूशलेम जो है वो दरिया के ऊपर नहीं बनाया गया है। लेकिन आपको शायद याद हो कि हिजकिय्याह बादशाह ने जो है कि बड़ा जो है वाटर सिस्टम जो है वो बनाया। इस वाटर सिस्टम के ज़रिए से जो है उसे जब पहाड़ों से ऐसा वाटर सिस्टम जो है वो बनाया जिससे
पूरे शहर के अंदर क्या होता था, वो पानी की सप्लाई होती थी। अगर आसार कदीमा आज भी जो है उन्होंने इस सिस्टम को जो है वो डिस्कवर किया है, और आज भी जो है यरूशलेम के अंदर इसको देखा जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि जो है शायद इसलिए यरूशलेम जो है वो दरिया के ऊपर नहीं बनाया गया, क्योंकि एक ऐसा दरिया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। ये लिटरल रिवर नहीं है, लिटरल दरिया नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल जो है वो दरिया है, जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस जो है वो साफ साफ वो बयान करती है, आमीन। ये वो रूहानी स्पिरिचुअल पावर है जो है खुदा अपने लोगों को जो इस शहर में रहते हैं, जो उसके मुकद्दस मस्कन के अंदर रहते हैं, वो उनको क्या करता है, वो सप्लाई करता है, ऐसा पानी सप्लाई करता है जिसके जरिए से उनको फरहत होती है, उनकी जान ताज़ा हो जाती है। कई दफ़ा हमारी जानें जो है वो ताज़ा दम नहीं है, हम रिफ्रेश नहीं हैं, हमारे अंदर जो है ताजगी नहीं, मुर्दगी पाई जाती है, हमारी जिंदगी के अंदर अफसुर्दगी पाई जाती है। लेकिन अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए से मैं फेंट ना हो सकूं, जिसके जरिए से मैं जुम्बश ना खाऊं, तो फिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी चीज है जिसके जरिए से मैं जो है फेंट नहीं हो सकता? ये सिर्फ और सिर्फ एक है जिसके जरिए से मैं फेंट नहीं हो सकता, खुदा का दरिया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा दरिया बोलिए, बताइए एक दूसरे को। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये साफ बयान किया है, और उसने कहा, यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ, इसलिए यीशु भी अपने जलाल को ना पहुंचा था। चनाचे होली स्पिरिट, ये है जो होली स्पिरिट, वो ऐसी नदियां हैं, वो ऐसी नदियों के ज़रिए से हमें बुलाना चाहता है, जिसके ज़रिए से हम कुव्वत पाते हैं, जिसके ज़रिए से हम ऐसा जोर पाते हैं। और अगर कोई शख्स है होली स्पिरिट के दरिया से नहीं पीता है, जो होली स्पिरिट का तालिब नहीं होता है, जो होली स्पिरिट को जो है की तरफ रुख नहीं करता है, और जो है अगर वो रुख नहीं करता, वो फेंट हो जाएगा, उसे जुम्बश होगी, वो गिर जाएगा, वो अफसुर्दा रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये रूहानी ताकत जो है वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फरहत चाहते हैं, अगर ताज़ा दम चाहते हैं, ताज़ा दम होना चाहते हैं, अगर रिफ्रेश होना चाहते हैं, अगर जो है आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने रूह में, अपने जान बदन के अंदर रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो एक ही दरिया है जिसके शाखों से जो है ऐसा दरिया बहता है जिससे यरूशलेम को, जिससे खुदा के शहर को क्या होता है, फरहत होती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालात से ना डरिए, परेशान ना हो, हमें जो है हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हमें मान पड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारी रूहानी कुव्वत है, प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं जब रूहुल कुदस जब नाज़िल हुआ, तो जब नदियाँ जारी होना शुरू हुई, तो फिर जहाँ जहाँ ये पानी गया है वहाँ वहाँ ज़िंदगी आई, वहाँ फरहत आई। अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जहाँ फरहत नज़र नहीं आती है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर ताजगी नजर नहीं आती है, और हम जो है मान पड़ रहे हैं, अगर हम कमजोर हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम दरिया से पी नहीं रही हैं, हम दरिया के तालिब नहीं हैं। एक आवाज यीशु मसीह ने इस्राएल के अंदर दी थी कि पुकार कर कहा था, और आज यही पुकार जो है आज जो है यीशु मसीह की ज़बानी में आप तक लेकर आना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास क्या करे, आकर पिए। हालेलुया। और जो कोई उसके पास आएगा वो पिएगा। और सामरी औरत को उसने पिलाया और वो भाग गई और ऐसा पिया कि वो ईमान लाई, और उसका पूरा शहर जो है वो ईमान लाया। क्या आप पीते हैं? क्या आप उसके तालिब हैं? अगर तालिब हैं तो ना सिर्फ जो है आप ताज़ा नजर आएंगे, आप फरहत, आपकी ज़िंदगी के लिए फरहत नजर आएगी, आपकी ज़िंदगी के लिए रिफ्रेशमेंट नजर आएगी। अगर आप मान पड़ जाते हैं, अगर आप मान पड़ जाते हैं
ये छोटा शहर नहीं है, ये कमज़ोर शहर नहीं है, ठीक है। और वो शख्स जो है वो जो है कमज़ोर वही होता है, वही मान पड़ता है जो खुदा के दरिया का तालिब नहीं है। हम रूहुल कुदस के तालिब हों, हम रूहुल कुदस के तालिब हों। और लिखा है कि जब कुव्वत का लिबास तुमको मिलेगा तुम क्या करोगे, मेरे गवाह होगे। गवाही क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर कम है? ऐसे क्यों आप जो है गवाही नहीं दे रही हैं? क्यों आप जो है अकेले अकेले नजर आते हैं? खानदानों को जोड़ना शुरू कीजिए, खानदानों के साथ खानदान आना शुरू कीजिए। आप अपनी गवाही शेयर कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। आमीन। रिफ्रेश हों, फरहत नजर आनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर ताजगी नजर आनी चाहिए। और रूहुल कुदस के जो तालिब हैं, जो इस शहर के, जो इस जो है इस दरिया के तालिब हैं, वो वहाँ पर जो है वो उससे सैर होंगे, वो उससे आसूदा होंगे। और या ज़करिया की किताब में क्या लिखा है, ना जोर से ना कुव्वत से, बल्कि क्या होगा, तेरे रूह से, खुदा के रूह से क्या होगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हम रूहुल कुदस के वसीले से गालिब आते हैं। अगर कोई शख्स जो है अपनी मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ है, अगर कोई शख्स जो है खौफ का शिकार और अपने या मान पड़ रहा है, वो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मान पड़ रहा है, वो कमज़ोर पड़ रहा है, वो बीमार है और वो उठ नहीं रहा है, वो अपनी चारपाई नहीं छोड़ रहा है, वो अपने बिस्तर से अलग नहीं हो रहा है, अपने घर से अपनी जो है अपने आप से अलग नहीं हो रहा है, वो शख्स अभी तक खुदा के रूह से नहीं पी रहा है, वो इस दरिया से पी नहीं रहा है। मैं आपको उभारना चाहता हूँ कि आप खुदा के दरिया से पीना शुरू करें। यीशु मसीह की पुकार को सुने कि उसने पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और सिर्फ यही है, यही वो शख्स है, यही वो यीशु है जिसके हाथ से ये दरिया जारी होता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या होगा, जैसे इस तीसरा की किताब के अंदर लिखा है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत। आमीन। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी क्या होगी, कुव्वत। अगर ऐसे दिन लेना चाहते हैं, जैसे तेरे दिन हैं वैसे ही तेरी कुव्वत होगी। 100 टाइम जो है आपकी कुव्वत होगी। अगर मैं 45 या 46 का हूं तो मेरी कुव्वत क्या होगी, जो है ऐसी जो है टन्स के अंदर होगी, ऐसी पावरफुल होगी, ऐसी जबरदस्त होगी कि जो बयान से भी बाहर होगी। जैसे तेरे दिन हैं वैसे ही तेरी कुव्वत होगी। अगर आप अपने दिनों के अंदर या कुव्वत का जो है वो नज़ारा या मज़ाहरा और जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर खुदा के दरिया से पीना शुरू करें। ये डिवाइन जो है वो रिसोर्स है हमारे पास। अगर इन रिसोर्सेज के अलावा अगर आप किसी और से पीते हैं तो इसलिए प्यासे हैं, अगर आप किसी और जगह से पी रहे हैं इसलिए जो है हम जो है फिर से जो है मान पड़ रहे हैं। कौन सी चीज़ों के हम तालिब हुए हैं जिसने हमें कमज़ोर कर दिया है, जिसने हमें मान कर दिया है, जिसने हमारी ताजगी को हमारे चेहरों से, हमारी रूह से वो छीन लिया है। अगर किसी और चीज़ ने हमें छीन लिया है, इन चीज़ों ने छीन लिया है, तो फिर एक ही सोर्स हमारे पास बच गया है, द वन एंड ओनली वन सोर्स, और वो क्या है, द रिवर ऑफ गॉड। आमीन। और अगर आप खुदा के रूह से और खुदा के दरिया से पिएंगे, आपको क्या होगा, जो ही आप इसके तालिब होना शुरू होंगे और जो ही आप इस दरिया के पास आने के लिए या तालिबे होंगे, आपकी उसकी आवाज़ जो है और उसकी जो है दरिया की आवाज़ें और उस दरिया के अंदर से चलने वाली जो है हवा आपको रिफ्रेश करेंगी। और जो ही आप इसमें डुबकी मारेंगे, आपको फरहत मिल जाएगी, आपको ताजगी मिल जाएगी, आपको खुशी मिल जाएगी, आपको शादमानी मिल जाएगी और ऐसे जोरावर हो जाएंगे, ऐसे जैसे तेरे दिन हैं वैसी तेरी कुव्वत होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तालिब हो द फर्स्ट जो है वो रिसोर्स क्या है, खौफ ना खाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या है, पनाह है। ठीक है, अगर खौफ है तो पनाह नहीं है। अगर खौफ नहीं है तो इसका मतलब है खुदा हमारी क्या है, पनाह है। अगर आप मान नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब यह है कि आप खुदा के दरिया से पी रही हैं। अगर आप मान पड़े हैं और आपको जुम्बश हो जाती है, इसका मतलब यह है कि आप खुदा के दरिया से नहीं पीते। आमीन। गौर से सुनिए, तवज्जो करके, ठीक है, इधर तवज्जो करिए कि किस तरीके के साथ अगर मान पड़ रहे हैं, अगर आप जो है गिर रहे हैं, आप जो है वो झटके खा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि खुदा के दरिया से नहीं पी रहे हैं। अभी तक जो है खुदा के रूह को आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है एक्सपीरियंस नहीं किया। कैसे करेंगे? दुआ तो करते ही नहीं।
मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जहाँ के खुदा के दरिया में से पीना है तो खुदा का तालिब होना होगा। आमीन। और मैं बहनों को कहूँगा, बहनों की मीटिंग के अंदर मैं जुमेरात के लिए खानदानों को भरूंगा कि खानदान अपने या पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ या पूरी जान के साथ उसके तालिब हों, बल्कि मैं ये कहूँगा खुदा के दरिया के तालिब हों। आमीन। लेकिन जो है जून तक नहीं रेंगती, जून तक नहीं रेंगती। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ कि कोई जो है किसी की जूं जो है इनके रेंगे ताकि जो है ये खुदा के कदमों में आना सीखें। ठीक है, इसलिए मांद पड़ जाएंगे, इसलिए कमज़ोर पड़ जाएंगे। और शायद जो है आज सुनेंगे और जाते ही वक्त में या जो है फाटक पार करेंगे चर्च का, जो है ये सारी पनाह जाती रहेगी, ये सारा दरिया जो है खुश्क पड़ जाएगा और ऐसे नजर आएंगे जैसे जो है दुनिया के सबसे कमज़ोर लोग हैं। और सिर्फ बजारा होगा कि वाह आई एम अ क्रिश्चियन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा के तालिब होना सीखिए ताकि जो है इन रिसोर्सेज को अगर आपने सीख लिया है तो आप ये नजर आएंगे, आप गवाही देते हुए नजर आएंगे, आप बोलते हुए नजर आएंगे, आप खुदावन के कलाम को अपनी ज़िंदगी से दिखाते हुए नजर आएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो इसमें बताना चाहता हूँ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आमीन। और ये तीसरी बात है जो आपको इस ज़बूर के अंदर नजर आएगी, और वो क्या है? बोलिए, खामोश हो जाओ। ठीक है, जब बोलिए जरा, क्या कहा गया है? मैं क्या हूँ? खुदा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खामोश हो जाओ, बी स्टिल एंड नो। क्या जानो? खामोश हो जाओ और जान लो। क्या जान लो? आई एम गॉड। क्या हूँ मैं? आई एम गॉड। मैं क्या हूँ? आई एम। प्रेज द लॉर्ड। और जो बी स्टिल का जो इब्रानी मफहूम है, टेक योर हैंड्स ऑफ। ठीक है, टेक योर हैंड ऑफ। ठीक है, क्या करो? अपने हाथ जो है वो छोड़ दो, ख़त्म करो। बी स्टिल का मतलब ये है जो है अपने हाथ जो है खाली कर दो। ठीक है, हमने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को पकड़ा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों को लिया हुआ है, किन किन चीज़ों की तरफ जो है रजू किए हुए हैं। एक नहीं, चार चार हाथ अपने रखते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ठीक है, और वो अपने हैंड्स क्या करने पड़ेंगे? टेक योर हैंड्स ऑफ। ठीक है, रिलैक्स एंड नो, रिलैक्स हों। ठीक है, रिलैक्स हों। ठीक है, हम रिलैक्स नहीं हैं। ठीक है, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे तफक्कुरात को, बहुत सारी फिक्रात को जो है ले लिया, आपने बहुत सारे बोझों को ले लिया है। हम स्टिल नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर अरताश पाया जाता है, हमारे अंदर हिल जुल रहती है। और ये अरताश अजीज़ बहनों भाइयों, ये हिल जुल जो है आपका नुकसान करेगी। और इस हिल जुल से कहीं इधर मारते हैं टकरे, कभी इधर टकरे मारते हैं, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी वो पकड़ लो, किसी और को पकड़ लो। और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हमें खुदा को जानने का टाइम नहीं मिल रहा है। हमें खुदा को जानने का टाइम नहीं मिल रहा है। हम खुदा को कब जानेंगे? जब स्टिल होंगे। बी स्टिल एंड नो। आमीन। कब हम खुदा को जानेंगे? बोलिए, किस तरह से खुदा को जानेंगे? बोलिए, हाँ, जब स्टिल होंगे। हम तो स्टिल है ही नहीं हैं, हम तो हर वक्त हरकत के अंदर रहते हैं। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये पकड़ लो, कभी वो पकड़ लो। ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, इन चक्रों के अंदर फंसे हुए हैं। क्या करें? बोलिए, बी स्टिल एंड नो। और उस वक्त तक आप खुदा को नहीं जान सकते हैं, उस वक्त तक आप आई एम गॉड को नहीं जान सकते हैं। इसलिए जो है ये रेवोल्यूशंस या आपकी जिंदगी से परे हैं। इसलिए ये चीज़ें जो है कई ईमानदारों की जिंदगी के अंदर जो है नजर नहीं आती है, क्योंकि वो हरकत के अंदर है, वो तो स्टिल है नहीं। खामोश हो जाओ और जान लो। आमीन। किस तरह से हम जो है नॉलेज ऑफ गॉड को जान सकते हैं? किस तौर पर आई एम गॉड को जान सकते हैं? मैं आपके ऊपर ये वाज़िया कर देना चाहता है कि भी आप खुदा को
जो आई एम है, मैं हूं, उसको कैसे जान सकती हैं? किस तरह से आप पहचान सकती हैं? किस तरह से आप उसका एक्सपीरियंस कर सकती हैं? ये उस वक्त होगा जब आप स्टिल होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे। आप रिलैक्स नहीं हैं, आपके अंदर हरकत है, आपके अंदर जो है मोशन है, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अर्थाश पाया जाता है, आप जो है हिलते रहती हैं। ऐसी है जैसे इस दुनिया का समुद्र जो है शोर मचाता रहता है, वो अर्थाश के अंदर रहता है, वो मदोजदर का शिकार है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे जो है उभार और ऊपर नीचे का जो है ऐसी जो है बेचैनी बेकरारी छाई हुई है, और हम बेचैनी बेकरारी का शिकार है, जिसके सबब से हम खुदा को जो है आई एम गॉड के तौर पर नहीं जानते। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि आई एम गॉड को जाने, ठीक है, ये मूसा को खुदा ने बताया था जहां पर वो मुसीबत के अंदर पड़े हुए थे, जब तकलीफ के अंदर पड़े हुए थे, जब गुलामी के अंदर पड़े हुए थे, जब जो है बोझ के नीचे दबे हुए थे, जब सिर्फ और सिर्फ उनके जो है सरों के ऊपर यही शिकार था, हम कब किस तरह से निकल सकते हैं, तब खुदा ने कहा आई एम गॉड। आमीन। तब जो है मूसा को कहा जा बता, मैं हूं जो मैं हूं ने तुझे भेजा है। आमीन। वहां पर जब ये नाम जो है मूसा को इस बात की समझ आई, तो आप जानते क्या हुआ है, वहां से गुलामी के बंधन और जुए टूट गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बगैर इस नाम को जाने हुए, गौर से सुनिए, बगैर इस नाम को जाने हुए ये जो ज़बूर आप पढ़ते हैं, जो यहाँ पर हालात नज़र आते हैं, अभी शायद हमने इसका एक्सपीरियंस बहुत कम किया होगा, लेकिन अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको सामना करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये बातें जो आज मैं आपके सामने जब वो शेयर कर रहा हूँ, ये आपके कानों में गूंजनी चाहिए, आपके दिल के अंदर गूंज जाए। और जो हालात बन रहे हैं, जो नजर आ रहा है, और जो कुछ होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पहले से जो है वो अलर्ट कर देता हूं, गॉड इज आवर जो है फोर्ट्रेस, वो हमारी पनाहगाह है, और वो हमारा जो है दरिया है जिससे हमें ताजगी मिलती है। और अगर आप आई एम को समझना चाहती हैं, तो फिर आपको स्टिल होना होगा, आपको खामोश होना होगा, आपको रिलैक्स होना होगा, और टेक योर हैंड्स ऑफ करने पड़ेंगे। और जब तक आप अपने हैंड्स ऑफ नहीं करते हैं, तब तक आप आई एम गॉड को नहीं समझ सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी बार बार जो है इस्राएलियों को कहा आई एम, आई एम, आई एम। याद है क्या कहा यीशु मसीह ने? जिंदगी की रोटी मैं हूं, फिर क्या क़यामत मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। ये सब चीजें जो है यीशु मसीह ने जब बार बार जो है कहा, इससे पहले इब्राहिम हो क्या है, मैं हूं। तुम किसको पकड़ते हो? कहते हैं कि यीशु नासरी को। उसने क्या कहा? मैं हूं। और जब वो मैं हूं कहता था, वो भागते थे, वो गिरते थे। जो है कोई शख्स जो है हाथ नहीं डाल सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता। जब मैं हूं कहा, वो तो खुद उसने जो है जाने दिया अपने आप को। दुनिया का नूर कौन है? मैं हूं। चनाचे अजीज बहनों भाइयों, हम किस तरीके के साथ जो है अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को जान सकते हैं? जो है आप कहेंगे मैं तो बड़ा स्टील हूं, लेकिन स्टील होने से अलावा नहीं है, बल्कि जान लें। आप उस वक्त तक खुदा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, और उस वक्त तक यहोवा जो है का एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आ सकता है, जब आप खामोश होकर जानने की कोशिश करेंगे। यही बात जो है आपको इस ज़बूर के अंदर नजर आती है, खामोश हो जाओ और जान लो। ये दूसरी बात है, व्हाट जान लो, व्हाट नो कि आई एम गॉड। आमेन। मैं खुदा हूं। आमेन। इसलिए ये तीन जो है डिवाइन रिसोर्सेज मैं आप तक लेकर आना चाहता हूं। अगर आपने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया, मैं आपको हकीकत बताऊं, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के इलाही तजर्बे को हासिल करेंगे, और फिर मार्टिन लूथर की तरह कहेंगे, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड।
और उसने दुनिया की जो है पूरी जो क्रिश्चियन एरा को बदल कर रख दिया। उसने जो है क्या किया, उसने हिस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम कर रख दिया। उसने जो है एक बड़े रेवोल्यूशन, एक बड़े जो है इनकलाब को बर्पा कर दिया। एक बड़ा रिवाइवल उस वक्त आता है जब कोई शख्स ये कहता है खुदावन मेरा जोर और मेरी कुव्वत है, आमीन, मुझे जुम्बश ना होगी और मैं खामोश हो जाऊंगा और मैं खुदा को जान लूंगा कि यकूब का खुदा मेरी पनाह है। और यकूब का खुदा का जिक्र इसलिए मुनासिब है क्योंकि यकूब की जिंदगी के अंदर जो है आप सारे हालात दे सकते हैं, उसके जो है पैदा होने से उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक जो है वो किन किन हालात में से गुजरता रहा, लेकिन उसने जान लिया कि खुदा मेरा हेल्पर है, खुदा मेरा मददगार है। इस मुल्क के अंदर अगर आप जो है बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर जो है कायम रहना चाहते हैं तो ये ज़बूर के अंदर ये तीन जो है ये तीन रिसोर्सेज, ये डिवाइन रिसोर्सेज, ये इलाही जो है वसाइल हैं जो खुदा ने आपको दिए हैं। अगर आज इसको आपने पकड़ लिया, जान लिया, तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ ये उल्ट कर ज़मीन उल्ट जाए, उल्ट पुल्ट जाए, हम ख़त्म हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए मार्टिन लूथर की तरह कहें, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। कहिए, अ माइटी फोर्ट्रेस is our God. Amen. अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।